Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our channel. Inshallah, today we will learn lesson 4. Okay, inshallah we'll start from here. Okay, आज हम जो है वो क्विकली थोड़े से सेंटेंसेस कर लेंगे और हमारी कोशिश ये है कि हम ग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा ना घुसें. कोशिश करें कि हम सोचना भी जो है ना वो इंग्लिश में करें, क्योंकि अगर हम सोचेंगे उर्दू में और फिर हिंदी में और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, सो इट विल टेक टाइम एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग सम हेजिटेशंस विद इन अस. So that's why what we have to do, we have to start thinking in English. Okay, we have to say these sentences so quickly and so many times that this will become fluent on our tongue. Okay, whenever we think about it, this should come out of our mouth automatically. We shouldn't have to think more about it. Okay, so let's begin from this sentence. This house is small. Okay, this house is small. क्या मतलब हुआ कि ये घर छोटा है. बोलो, ये घर छोटा है. इंग्लिश में बोले ना. This house is small. This house is small. This house is small. This house is small. सही है. अगर ये इसका ऑपोजिट क्या होगा? This house is big. This house is large. लार्ज भी बोल सकते हैं. अगर लंबा होगा तो, वैसे बड़ा होगा तो बोलेंगे दिस हाउस इज बिग, इट्स ह्यूज. It's huge. ऐसे बड़ी कोई चीज़ होती है ना तो उसको इस तरह इमोशंस के साथ बोलते हैं. दिस हाउस इज ह्यूज और इज बिग. दिस हाउस इज बिग और दिस रूम इज ह्यूज. It has a lot of space. It has a lot of space. इसके अंदर बहुत सारी जगह है. समझ में आई बात? It has a lot of space. It has a lot of space. This house is big. This building is very big. Good. सही है. This house is very big and large. Okay. बड़ा भी है, लंबा भी है. सही है. Okay. सो अगर हम बात करें कि ये मतलब अगर पीछे की बात करेंगे वो घर बड़ा था तो दैट हाउस वाज स्मॉल. सही है. अच्छा, अगर हम बहुत सारे हाउसेस की बात करें एक साथ बने तो विल से दीज हाउसेस आर small. और दीज हाउसेस आर बिग. These houses are big. These houses are big. सही है. Okay, the next sentence is his car is. This car is expensive. This car ये is. this नहीं है, his. His car is expensive. Oh, suppose if there is a lady sitting here and we are talking about her car, so how we will say? We'll say her car is expensive. Her car is expensive. Her car is expensive. Her car is expensive, we will say. Okay. So the boys were intelligent. The boys were intelligent. So what we are talking about? The boys were intelligent. The boys were intelligent. अगर एक बंदा होगा तो that boy was intelligent. अगर मैं किसी बच्चे की बात कर रहा हूँ, that boy was intelligent. That boy was intelligent. That boy was intelligent. सही है. Okay. तो द बॉयज़ अगर अभी हैं, यहाँ पे हैं कुछ बच्चे वो इंटेलिजेंट हैं तो अभी हैं, इस आजकल मौजूद हैं, तो हाउ विल से दैट? विल से दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट. वी विल यूज़ आर. दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट. और दोज बॉयज़ अगर दूर होंगे, कहीं और होंगे तो हम दोज कर देंगे. अगर करीब सामने होंगे तो हम लोग बोल देंगे दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट. क्या बोलेंगे? These boys are intelligent. These boys are intelligent. सही है. Okay. Our neighbors are nice. Our neighbors are nice. हमारे पड़ोसी बहुत सारे हैं ना, neighbors, तो इसलिए R लिखा हुआ है यहाँ पे. क्या लिखा हुआ है? ARER. क्या लिखा हुआ है? ARER. Our neighbors are nice. सही है. Neighbors are nice. So our neighbor is nice. अगर एक होगा कोई neighbor तो हम उसको बोलेंगे our neighbor is nice.
सही है. और अगर हमारा नेबर चला गया और हम उसके बारे में याद कर रहे हैं कि यार वो बहुत अच्छा था, तो हाउ विल से आवर नेबर वाज नाइस. Our neighbor was nice. और अगर ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे? आवर नेबर्स were nice. Beautiful, mashallah, you remember this. Our neighbors were nice. Our neighbors were nice. सही है. अब आखिरी सेंटेंस क्या है? This car is red. This car was red. Was red. सही है. That car was red. That car. या अगर कोई कार सामने खड़ी है, अभी उसका कलर चेंज हो गया है, now the color is changed, it is blue, so we'll say this car was red, now it is blue, or now it is white, before it was red. वो how we'll say? Before का मतलब होता है कबल. Before it was red. and now it is blue, or now it is white, Now it is gray. or it used to be red. It used to be red. और सही है. used to का वर्ड भी इसी तरह इस्तेमाल होता है कि ये पहले लाल होती थी. This car used to be red, और this car was red. सही है. This car was red. ये कार लाल थी. ये कार लाल. और used to जब लगाते हैं तो क्या हो जाता है? ये कार लाल होती थी. This car used to be red. This car used to be Red. Used to be red. Used to be red in color. सही है. तो ये आपके हो गए सेंटेंसेस. यहाँ तक आपको अच्छी तरह इसकी दोबारा प्रैक्टिस करनी है आपने. सही है. अब ये नया टेबल है, इसके अंदर पहला आप पढ़ेंगे या पढ़ें? She is a good doctor. She is a good doctor. She is a good doctor. Beautiful. और अगर वो पहले होती थी तो क्या कहेंगे? She was a good doctor. She was a good doctor. अब अगर वो हम ये ऐसे कह रहे हैं कि वो हुआ करती थी तो वो ऐसे बोलेंगे she used to be. She used to be a good doctor. 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 सही है. अच्छा, अब ये this is a useless book. 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 और अगर बहुत सारी बुक होंगी पढ़ी तो क्या बोलेंगे? These are useless books. एक तो नहीं है ना, books हैं. These are useless books. These are useless books. अब आ नहीं लगाएंगे. आ जो है ना वो एक के लिए यूज होता है. आ. सही है. So these are useless books. These are useless books. और अगर एक है तो क्या बोलेंगे? This is a useless book. This is a useless book. This is a useless book. सही है. This is a Okay. useless. अब next आप पढ़ेंगे. This father This is. नहीं है. His father is Is a brave soldier. Is a brave soldier. His father 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 is a. His father is a brave soldier. His father is a brave soldier. उसका बाप जो है वो एक बहुत ही बहादुर सिपाही है. His father is a brave soldier. उसका वालिद एक बहादुर सिपाही है. बहादुर, डरता नहीं है. Brave. बोलो brave. Brave soldier. Brave soldier. सही है. अच्छा, नेक्स्ट पढ़ें. They are medical students. They are medical students. Beautiful. They are medical students. सही है. ये हो गया आपका. यहाँ पर हो ये रहा है कि सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन आपस में लिखे हुए हैं. सही है. अब देखें, यहाँ पहले जो है हो ये रहा था पिछले उसमें कि सब्जेक्ट लिखा था, लिंकिंग वर्ब था और एडजेक्टिव था और नाउन था. अब यहाँ पर हम एडवर्ब का इजाफा कर रहे हैं जो मजीद एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा. क्या करेगा? एडजेक्टिव को मजीद डिफाइन करेगा. लाइक दिस
is a useless book. हम लोग ये कह रहे थे ना, this is a useless book. क्या कह रहे थे हम? This is a useless book. अब इसके साथ एक और उसको अंदर और शिद्दत और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करना है. तो ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये बात के अंदर दम पैदा करते हैं. ये जो अल्फाज होते हैं ना बेटा, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये बात के अंदर दम पैदा करते हैं. वरना तो आप बोलेंगे दिस इज़ बैड बुक. सही है, सिंपल, गुड बैड, ये इतना तो बोलेंगे. लेकिन एडजेक्टिव्स याद करने से और एडवर्ब्स याद करने से क्या होता है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने इमोशंस का बता सकते हैं. आप ये और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ज़्यादा उसकी डिटेल बता सकते हैं, और ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं किसी को. सही है. Yes. जैसा कि आप पहले आप कह रहे थे दिस इज़ अ यूजलेस बुक, लेकिन अब आप क्या बोल रहे हैं? दिस इज़ एन एब्सोल्युटली यूजलेस बुक. बोले दिस इज़ एन एब्सोल्युटली यूजलेस बुक, यानी कि आपको बहुत ही बुरी लग रही है. तो आप सही तरीके से, जानदार तरीके से एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दिस इज़ एन एब्सोल्युटली यूजलेस बुक. This is an absolutely यूजलेस बुक. अब ये जो एब्सोल्युटली है ना, ये एडवर्ब है. सही है. अब इस तरह मुख्तलिफ एडवर्ब्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वो आपने देखना है. सही है. क्विकली, दिस इज़ एन एब्सोल्युटली यूजलेस बुक. पढ़ें. This is An absolutely. This is an absolutely useless book. Beautiful. His father is an exceptionally brave soldier. Exceptionally मतलब exceptionally का मतलब कि वो आम से हट कर है, यानी कि जैसे आम लोग होते हैं ना, उनसे हट के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रेव सोल्जर है. सही है. तो हिज फादर इज़ अ वेरी ब्रेव सोल्जर. अब ये अ वेरी जो है ना, ये इतना अच्छा नहीं समझा जाता, हर कोई बोलता है. ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है तो आप एडवर्ब जानदार वाला यूज़ करें. जानदार वाला क्या है? हिज फादर इज़ एन एक्सेप्शनली ब्रेव सोल्जर. क्या बोलेंगे? इज़ एन एक्सेप्शनली ब्रेव. एक्सेप्शनली ब्रेव. एक्सेप्शनली exceptionally 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 होता है कि मतलब जो आम लोग हैं ना, गैर मामूली, यानी कि मामूली नहीं होगा, गैर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा. सही है. और सादा तरीका क्या है? हिज फादर इज़ अ वेरी ब्रेव सोल्जर. His father is a very brave soldier. और अगर लड़की के लिए बोलना है तो her father is a very brave soldier. लेकिन अगर थोड़ा अच्छी तरीके से बोलना है तो her father is an exceptionally brave soldier. बाबा, ये जब लड़की भी आ रही है तो फादर क्यों लग रहा है? तो लड़की का भी अब्बा होता है ना, फादर होता है ना, लड़की का भी तो फादर होता है. हर फादर, उस लड़की का फादर. हिज फादर का मतलब कोई आपका दोस्त है, उसका फादर. हर फादर मतलब कोई लड़की है तो उसका फादर. सही है. Yes. दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. अब देखो, पहले हमने क्या कहा था? दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. अब हम क्या लगा रहे हैं? ये वेरी जो है ना, ये एडवर्ब है. बोले वेरी इज एडवर्ब. एडवर्ब है. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब. तो एडवर्ब क्या है यहाँ? वेरी. एन एक्सेप्शनली ये एडवर्ब है. एन एब्सोल्युटली ये एडवर्ब है. ये सारे एडवर्ब्स हैं. समझ में आ रही है बात? दे आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. They are very intelligent students. They are very intelligent students. समझ में आ रही है बात? तो अब आपने ये भी देख लिया यहाँ पर कि एडवर्ब को किस तरह एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं. सही है. अब भाई आप ये कहानी छोटी सी खुद एक्सप्लेन करो. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन अ स्मॉल स्टोरी इन इंग्लिश अबाउट पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर. ओके, गो ऑन. The house is very small. The house next door is very small, but their car is very expensive. The boys living there, and and very intelligent. The boys living there are very intelligent. And
and they are medical students. Good, well done. Go on, your turn now. The house next door The house next door very small. is very, linking verb Is is very very small, but their car the car is very- very expensive. The boys living there living there are are intelligent. very intelligent. Are very intelligent. Adverb use karo, are very intelligent. Are very intelligent And medical student. they are medical students. And they are medical student. Students ज़्यादा है ना, Students. सही है. तो ये हो गया आज का लेसन, शॉर्ट लेसन है. वी हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. कल आपने खुद से कोई ना कोई स्टोरी सुनानी है. ओके, सो यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टोरी एंड यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टोरी. ओके, थिंक अबाउट सम स्टोरी एंड यू हैव टू से इट योरसेल्फ इन इंग्लिश, completely in English. Okay, now start talking in English, start thinking in English. You can use broken words, whatever you know right now, just use them, but try to imitate in English, thinking in English. Okay, so we finish our lesson here, inshallah. Subscribe the channel and share the videos. Bell icon. Thanks. Assalamu alaikum. Thanks